ठीक है. Yes, absolutely, more than sufficient, my friend. Right? Yes, so the course is absolutely sufficient. Don't worry about that. That is what I'm going to talk about today. Right? Basic resources I'll discuss in the session itself. Right? Okay. So basically, simple. So all of you, I hope that you are thinking of taking history as your optional, or somewhere down the line you are interested in history. So you might be having certain queries. बहुत सारे doubt होते हैं कोई भी optional select करने के पहले. So this is basically something that we are going to talk about. आज का जो सेशन है, it is basically scheduled on this particular topic. सबसे पहले जो है, we are going to talk what is history optional. History optional होता क्या? You need to understand it in brief. Thereafter, we are also going to burst the myths related to the history optional. History optional से related कुछ myths हमेशा होता है. Myths in the sense that कि इसका syllabus बहुत बड़ा है, या फिर जो है basically बहुत ही ज़्यादा vast है. इसके basic resources क्या क्या होने चाहिए, तो etc. thing. Thereafter, course deliverable, since this is a promotional activity, तो जो हमारा कोर्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि exactly what are the course deliverable and how this course is going to help you out. And thereafter, finally, why to join the course. The course के जो है added advantage आपको क्या मिलेंगे over and above or the course, we can say that. So let's enter into this one. सबसे पहले and सबसे foremost, you need to have a general idea about the history optional. And when we talk about general idea, is that the entire history optional covers your ancient India, medieval India, modern India, and thereafter फिर world history. वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इट इज बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. आपको एंशिएंट एंड आफ्टर मीडिएवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. रफली पकड़ के चलो 1700 से लेके 2000 के बीच का जो टाइम पीरियड है, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब ओनली 300 ईयर्स का जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है. एनी ऑप्शनल इन यूपीएससी इज ऑलवेज हैविंग 500 मार्क्स, and this 500 marks are further categorized into 250 marks worth papers. There will be two papers worth 250 marks each, we can say that. पेपर वन में आपका एंशियंट एंड आफ्टर मीडिएवल आता है, एंड आफ्टर पेपर टू में मॉडर्न एंड आफ्टर वर्ल्ड आता है. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि दिस इज योर हिस्ट्री ऑप्शनल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से एमए और यू कैन से दैट पीएचडी. इसके लिए आप जो है प्रिपेयर नहीं कर रहा, एंड दैट्स व्हाई जो आपके सिलेबस का लेंथ एंड ब्रेड्थ है इट इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा जो आपको दिक्कत भरी बातें जाती है. एंड दैट्स व्हाई हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे पहले तो आपको यही चीज समझने की यू आर नॉट एकेडमिशियन. आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना रहता, आपको ऊपर ऊपर से सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो एक इलेबोरेट आइडिया जो होना चाहिए. एंड फिर इनका सिलेबस वगैरह उसके लिए कुछ और जूम सेशन आई विल बी टेकिंग. अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से ही चीजें जो है समझनी है. तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है इट इज बेसिकली दिस फोर topic. We can say that this topics will be in the paper 1, this topic will be in the paper 2. Next important question which I want to highlight or which I want to talk about in this particular session is exactly why you shall be taking history as your optional. या फिर if you are interested then obviously history optional में जो है there are certain myths that are there which we need to, you can say that, handle. सबसे पहला वाला जो aspect which I consider UPSC में history is the common denominator. History is always a common denominator. अगर हम लोग प्रीलिम्स में बात करते हैं तो प्रीलिम्स में रफली पकड़ के चलो 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से आते ही आता है. देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करें तो GS1 इज देयर इन योर मेंस, एंड GS1 में 75 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर जो है आपका हिस्ट्री से आने ही वाला है. एंड देयर आफ्टर फिर GS2, GS3 एंड देयर आफ्टर फिर GS4 इज देयर. अल्टीमेटली ये सारी सब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री के इंटरलिंकेजेस आर देयर. जैसे GS4 की अगर हम बात करें तो GS4 में देर आर टोटल 8 टॉपिक, एंड ये 8 टॉपिक में से एक टॉपिक इज देयर दैट इज लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट नेशनल लीडर. अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको इतिहास करना ही पड़ेगा. आपको आचार्य चाणक्य पढ़ने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं तो गांधी पढ़ने पड़ेंगे, पटेल, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका वैसे भी यू कैन से हिस्ट्री में कवर अप हो ही जा रहा है. फर्दर GS3 की आप बात करोगे तो इशू ऑफ टेररिज्म कैन बी देयर, और इशू ऑफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट कैन बी देयर, इशू ऑफ द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कैन बी देयर, या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इटसेल्फ, वी कैन से. ये सारे ही टॉपिक कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री के बेस के ऊपर चलते हैं. हिस्ट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेस फाउंडेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड वैसे ही अगर हम लोग GS2 की बात करते हैं तो GS2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, and thereafter even we can say that
कि सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस वाले जो टॉपिक है, इसमें भी तो इतिहास ही है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द लॉज बिफोर 1950, एंड वो लॉज को ब्रेक डाउन करने के लिए फिर किस तरीके से यूपीएससी ने ये सिलेबस आपको दे के रखा है कि आपको हिस्ट्री करने की जरूरत है। अगर आपने वो चीजें समझ के रखी है कि एग्जैक्टली व्हाट वर द लॉज बिफोर 1950, तो 1950s के लॉज पढ़ने में आपको काफी ज्यादा आसानी जाती है। योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विल बी रॉक सॉलिड, वी कैन से दैट। अल्टीमेटली अगर आप इवन इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फोकस्ड अपॉन चाइना, पाकिस्तान, या फिर यू कैन से दैट कि कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान एंड श्रीलंका। एंड ये सारी ही कंट्री का इंडिया के साथ ट्रेडिशनल रिलेशन क्या रहा है। ये ट्रेडिशनल रिलेशन अगर आपको पता चल गया, देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कंटेंट ओवर एंड अबोव वॉट एवर दैट अदर कैंडिडेट्स आर गोइंग टू सी। इतना ही नहीं तो यू कैन क्लियरली से कि इवन ऐसे, आई होप आपने थोड़ा बहुत यूपीएससी देखा ही होगा, तो ऐसे को लिखने के जो मल्टीपल तरीके होते हैं, उसमें से वन सिग्निफिकेंट वे ऐसे लिखने का इज स्टार्ट योर ऐसे विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या फिर दूसरा सिग्निफिकेंट तरीका है कि स्टार्ट योर ऐसे विद एनेक्डोट। अगर आपने एनेक्डोट के साथ ऐसे चालू किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ अगर आपने ऐसे चालू किया, तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वेरी आइडियल ऐसे। एन एनेक्डोट के लिए आपको लगती है स्टोरीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आपको लगता है काफी इलेबोरेट नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली ये सारी ही चीजें जो है कहीं ना कहीं तो जो आपको काफी इलेबोरेटली हेल्प करेगी इफ यू आर टेकिंग हिस्ट्री एज योर ऑप्शनल। एंड दैट्स व्हाई इन यूपीएससी वी कॉल यूपी हिस्ट्री ऑप्शनल एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हिस्ट्री में, या फिर यू कैन से यूपीएससी में, सॉरी, कहीं ना कहीं तो जो एक मिसनोमर है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, देन यस एब्सोल्युटली है। जब इतना ज्यादा क्रॉस कनेक्शन है, इंटरलिंकेजेस है, तो कहीं ना कहीं तो यूपीएससी में जो है हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा होगा। बट देन लेट्स कंपेयर विद द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट इन द हिस्ट्री, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का जीएस में वैसे भी कुछ लेना देना है नहीं। एंड एंथ्रोपोलॉजी अगर आप अपना ऑप्शनल लेते हो तो 4 to 5 मंथ्स में कवर अप तो हो ही जाएगा, बट फिर भी आपको एंशियंट मिडियल मॉडर्न तो वैसे भी पढ़ना ही है। एंड एंशियंट मिडियल मॉडर्न पढ़ने के लिए फर्दर 4 to 5 मंथ्स आपके जाएंगे ही। तो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने के लिए आपको 6 to 8 मंथ लगते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने में आपको 4 to 5 मंथ्स लगेंगे, बट उसके ऊपर जीएस एंड आफ्टर प्रिलिम्स का हिस्ट्री कवर अप करने के लिए ऑब्वियसली आपको जो है और ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली अ कॉमन डिनोमिनेटर, एंड कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से ही यूपीएससी में हिस्ट्री का जो है सिलेबस आपको थोड़ा बहुत जो है ज्यादा लगता है। फर्दर हिस्ट्री ऑप्शनल जब आप लोगे तो फिर रिसोर्सेज जो है इसकी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। एंशियंट के लिए वी आर हैविंग उपिंदर सिंह, देयर आफ्टर बीए का इग्नू मटेरियल। मिडिएवल के लिए वी आर हैविंग सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 बीए का इग्नू मटेरियल। मॉडर्न इंडिया के लिए वी आर हैविंग प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय, एंड आफ्टर बीएल ग्रोवर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर टू बीए का इग्नू मटेरियल इफ यू वांट टू। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए फॉर 20th सेंचुरी वी आर हैविंग नॉर्मन लोवे, 17, 18, 19th सेंचुरी के लिए एल मुखर्जी एंड जैन माथुर। तो रिसोर्सेज जो है बथेरे अवेलेबल है, बट फिर रिसोर्सेज जब ज्यादा होते हैं तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ना समवेयर डाउन द लाइन। ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज जितने ज्यादा रिसोर्सेस अगर आपके पास रहेंगे तो उतना ही ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम भी लगता है। एंड फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द कंटेंट ऑल्सो, अपना क्रक्स मटेरियल। मार्केट में राइट नाउ मेरा क्रक्स मटेरियल इज द बेस्ट मटेरियल दैट इज अवेलेबल। एंड ये क्रक्स मटेरियल जो इट इज गोइंग टू हैव ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल द इंपॉर्टेंट बुक, नॉट ओनली विच आई हैव टोल्ड यू, बट इसके अलावा बाकी के बुक्स जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में, जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़े थे, उसका भी एक्सेस जो है आपको एक क्रक्स में मिल जाएगा। तो रिसोर्सेस मोबिलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल सिलेक्टिंग योर ऑप्शनल, एंड रिसोर्स बहुत ज्यादा है। एंड फर्दर अगर आपने हमारा कोर्स लिया तो हमारे कोर्स में जो आपको कंटेंट एकदम ही वेल क्यूरेटेड मिलेगा। स्टडिंग दिस 8 to 9 यू कैन से दैट कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप जो है बेसिकली सिर्फ क्रक्स पढ़ोगे, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। देयर आफ्टर फिर इंक्रीजिंग वेटेज इज ऑल्सो देयर। अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में कंसिस्टेंटली 15 मार्कर्स या फिर 15 क्वेश्चन का जो एक बेस है यूपीएससी ने बना के रखा है। फर्दर अगर आप बाकी के जगह पे भी देखोगे तो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड वैसे हिस्टोरिकल एसेज जो है वो यूपीएससी में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी हिस्ट्री से कभी डिस्टेंस कर ही नहीं सकता। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन योर कंट्री विदाउट स्टडिंग योर बैक। आपने जब पास नहीं पढ़ा है तो आपकी कंट्री आगे जा ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई
In UPSC, you can clearly say that this entire history as a optional or as a subject has remained a quite important one. फर्दर अगर रिजल्ट की हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा ही होगा अवधिजा के साथ यू हैव बेसिकली कनेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट कंसिस्टेंटली यूपीएससी के आ रहा है. टॉप 50 में बेयर मिनिमम वन या फिर बेसिकली दो बंदे जो है आपको हमेशा से हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जो दिखाई देंगे. हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज क्वाइट देयर. इनफैक्ट आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल. अगर मुझे 300 प्लस आ सकते हैं इन 2018 का अटेम्प्ट, अभी मार्कशीट भी मैं आपको दिखाऊंगा. वैसे ही श्रुति शर्मा इज देयर 2 इयर्स पहले की टॉपर एंड देर आफ्टर अभी के लिए अवधि चाहे अभी के लिए मार्क्स नहीं आए बट वी आर क्वाइट श्योर शी इज गोइंग टू गेट more than 280 to 90 marks in the history. वैसे यूपीएससी is also going to help you understanding the contemporary issues also. यूक्रेन का वॉर क्यों हो रहा है, देर आफ्टर फिर ट्रम्प के टैरिफ प्लान में एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कैपिटलिज्म क्या है, why there is an ideological struggle in between right wing and left wing politics, why there is a struggle in between China and thereafter America, is there a reservation policy in any other country, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी का इंडिया को कोई जरूरत है या नहीं है. तो ऐसे मल्टीपल कंटेम्प्ररी इश्यूज आर देयर. इंडिया को सेक्युलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, is declaring warfare with Pakistan advantageous for our country, or is there any benefits entailed in the warfare with the Pakistan? कश्मीर इशू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर कश्मीर इशू का मेन बेस क्या है जिसकी वजह से ये इशू कभी खत्म नहीं हो पा रहा है. ऐसे बथेरे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस विल बी देयर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी. एंड ये सारे ही क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं ना कहीं तो जो इतिहास में ही दिखाई देगा. The more clarity you are having for UPSC, the more beneficial it will be for you to tackle this particular issues, we can say that. And finally, अगर हम बात करते हैं तो history is always interesting to read. इतिहास जो है ये हमेशा से मजेदार सब्जेक्ट रहा है. You will be getting to know lots of stories, lots of anecdotes and lots of you can say mistakes of the past personalities. And जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो you not only become a neutral person but you also understand politics in a well efficient manner which is definitely going to help you in your future endeavor. तो जो मल्टीपल मिथ्स रहे हैं यूपीएससी के साथ आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि दे आर नॉट ट्रू. अगर हम लोग बेसिकली ये हिस्ट्री के कोर्स डिलीवरेबल की अगर हम बात करें तो द कोर्स विच आई हैव जस्ट लॉन्च, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी आपको जो थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए. अल्टीमेटली ये कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे तो व्हाट आर द थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. कोई भी कोर्स इन माय ओपिनियन जो है इट हैज टू बी होलिस्टिक, ऑल एनकम्पासिंग. एंड इन माय ओपिनियन एक फाउंडेशन कोर्स जब आप लगाते हो तो फाउंडेशन कोर्स का बेसिक पर्पस क्या है, बिल्डिंग योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किल सेट. प्राइमरी स्किल सेट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्किल सेट का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी स्किल सेट इज बेसिकली द स्किल सेट which is going to develop your conceptual clarity and thereafter a critical mindset. Critical mindset is the base of the entire UPSC. यूजुअली होता क्या है कि जब हम लोग यूपीएससी में नहीं रहते, यूपीएससी के बाहर रह के प्रिपेयर करते हैं या फिर यूपीएससी के बाहर रहते हैं तो हमको लगता है हम जो बोल रहे हैं वही सच है, मैं ही जो है बेसिकली हमेशा शहाना आदमी हूँ एंड आफ्टर मैं बोलूंगा उसी हिसाब से चीजें होनी चाहिए. एंड आफ्टर देयर इज अ टेंडेंसी अमंग ऑर्डिनरी पर्सन दैट दे थिंक कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, जो बोलेंगे वो होगा, जबकि ऐसा तो नहीं होता है. हर एक पर्टिकुलर इश्यूज विच यू नीड टू हैंडल, हर एक पर्टिकुलर इशू दैट यू आर गोइंग टू फेस इज ऑब्वियसली हैविंग टू साइड. एंड ये दोनों साइड अगर आपको नहीं पता है देन हाउ कैन बी अ डिसीजन मेकिंग ऑन योर पार्ट इज गोइंग टू बी एफिशिएंट. अल्टीमेटली ये डिसीजन मेकिंग यूपीएससी आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में भी तो चेक करती है. प्रीलिम्स में आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा छोड़ना है. मेंस में जब आप आंसर लिखते हो तो कौन से डायमेंशन कवर अप करने, कौन से डायमेंशन कवर नहीं करना है. एंड इंटरव्यू में जब आप आंसर देते हो तो आपका थिंकिंग हॉराइजन क्या है, ये सारी चीजें जो हमेशा चेक की जाती है. राइट नाउ सिटिंग इन 2025 यंग जनरेशन के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ देयर आइडियोलॉजी. मतलब अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो कांग्रेस को गाली डालोगे, कांग्रेस के सपोर्टर हो तो बीजेपी को गाली डालोगे. एंड देयर आफ्टर दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ द पास्ट. जबकि हार्डली 20 ईयर पहले अगर आप जाओगे तो आपने देखा भी होगा कि वाजपेयी जी ऑन द फ्लोर आके हमेशा कांग्रेस की तारीफ करेंगे, नेहरू की तारीफ करेंगे. एंड हार्डली 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि मनमोहन सिंह हमेशा वाजपेयी जी बीजेपी की तारीफ करेंगे एंड राइट विंग एजेंडा जो है अगर लीनियंट लेवल पे तो किस तरीके से अच्छा है इसकी बात करेंगे.
Even Pranav Mukherjee used to do that by 2017-2018. बट पोलराइजेशन अब इतना ज्यादा हो चुका है कि बच्चे को चीज समझ नहीं आती है कि यूपीएससी में अब मैं क्या करूं. Shall I remain firm to the government ideology or can I criticize that particular ideology in a constructive manner? तो ये जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है. ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जब तक आप में डेवलप नहीं होती है तब तक आपको जो है यूपीएससी क्रैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी. आपने ये भी चीज देखी होगी कि नॉट ओनली इन ऑप्शनल बट ऑल्सो इन प्रिलिम्स मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन के आगे यूपीएससी डायरेक्टिव क्रिटिकल एनालाइज क्रिटिसिज्म यही वाला लगा के रखती है. यूपीएससी वांट टू नो कि जब आप प्रिपेयर करते हो हाउ मच कैपेबिलिटी यू आर हैविंग टू टेक क्रिटिसिज्म एंड टू गिव क्रिटिसिज्म, एंड इसी के ऊपर अपना फोकस रहता है. फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू कंडक्ट 160 से लेके 180 लेक्चर्स इन दिस पर्टिकुलर बैच. इसमें जो ये वाला बैच जो मॉडर्न इंडिया से चालू होगा तो पहले मॉडर्न इंडिया करेंगे, देयर आफ्टर फिर वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, देयर आफ्टर फिर एंशियंट होगा एंड देयर आफ्टर फिर मीडिएवल होगा. दिस विल रिमेन द फ्लो. एंड ये चीजें जो है ऑब्वियसली लेक्चर में आई एम गोइंग टू सिक्योर कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल क्लियरिटी एंड देयर आफ्टर फिर आपका क्रिटिकल माइंडसेट जो कैसे एक्टिव करना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू कंटेंट सपोर्ट. कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज बेसिकली द क्रक्स मटेरियल. क्रक्स मटेरियल जो इट इज अ सोल ऑफ माय प्रोग्राम. ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने क्या किया कि सोर्सेज बथेरे ना मार्केट में, सारी सोर्सेज उठाते हैं एंड सारे सोर्सेज उठा के कहीं ना कहीं तो ये सोर्सेज जो है इनके ऊपर जो पढ़ाई चालू करते हैं. मेजोरिटी ऑफ द हिस्ट्री का बंदा वही करता है. बट इसकी वजह से होता क्या है कि सबसे पहले यू आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि वो एक बुक 1000 पेज का है, उसको पढ़ने में ही साल चला जाता है. ऐसे 7-8 बुक्स अगर आप लेके बैठोगे तो कम से कम 4-5 साल आपके कहीं नहीं गए. एंड दूसरी इसमें गलती क्या होती है कि आप जब एक पर्टिकुलर ऑथर का इतिहास पढ़ते हो तो यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन पर्टिकुलर ऑथर्स व्यू पॉइंट. आपको जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द व्यू पॉइंट चाहिए वो कहाँ पर है आपके पास. एंड दैट्स व्हाई इन यूपीएससी it is always recommended to have a multiplicity of the viewpoint in a very crisp manner. एंड यही चीज मैंने आपको क्रक्स में करके देके रखी है. एंशियंट इंडिया के लिए अगर आप बात करोगे तो नॉट ओनली उपिंदर सिंह एंड बीए का इग्नू मटेरियल बट रोमिला थापर एंड देयर आफ्टर फिर वीडी महाजन. एंड इनके अलावा जो है बेसिकली सिलेक्ट फ्यू टॉपिक ऑफ यू कैन से दैट दिस वन दैट इज वंडर दैट वाज इंडिया एएल बशम के बुक के मैंने आपको ये क्रक्स में डाल के देके रखे हैं. मीडियवल इंडिया की बात करोगे देन अगेन सतीश चंद्रा पार्ट 1, सतीश चंद्रा पार्ट 2, बीए का इग्नू मटेरियल, उपिंदर सिंह के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, रोमिला थापर के सिलेक्टिव टॉपिक, बीडी महाजन के जो है कुछ सिलेक्टिव टॉपिक यू कैन से दैट. एंड इसके अलावा आई कैन से वन मोर पर्टिकुलर टॉपिक that is basically you can say that wonder that was India के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक. जस्ट गिव मी अ मिनट, किसी मिनट. तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो भी मैंने आपको जो यहाँ पे डाल के देख के रखे हुए हैं. वैसे ही अगर आप मॉडर्न इंडिया की बातें करोगे तो मॉडर्न इंडिया में जो है अगेन प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय, देयर आफ्टर फिर यू कैन से दिस वन दैट इज बीएल ग्रोवर का मॉडर्न इंडिया का बुक, देयर आफ्टर फिर बीए का इग्नू मटेरियल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल के टाइम पीरियड में विलियम डैलरम्पल के व्यूज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो लास्ट मुगल, अनारकी, इनके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो मैंने आपको क्रक्स में डाल के देख के रखे हुए हैं. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन बीए का इग्नू मटेरियल, सिलेक्टिव टॉपिक के लिए एमए का इग्नू मटेरियल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको जो है नॉर्मन लोवे, जैन एंड माथुर, एल मुखर्जी, इन सभी का बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के रखा. अपार्ट फ्रॉम दैट एरिक हॉब्सबॉम रेवोल्यूशन के टॉपिक के लिए एंड आफ्टर यू कैन से डेविड मैसन फॉर द पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट के लिए. तो दिस इज द बुक लिस्ट विच आई हैव कवर्ड इन माई क्रक्स मटेरियल. आपने क्रक्स पढ़ लिए तो 2500 पेज में आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया. रेफरेंस बुक पे जाओगे तो 7-8-9,000 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे. बट 2,500 पेजेस में आई हैव सफिशिएंटली समड अप एवरीथिंग. एंड ये चीजें जो मैंने आपने क्रक्स में जो डाल के रखी है इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर एंटायर हिस्ट्री ऑप्शनल विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर. 1-1.5 साल में जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल जो है काफी इलैबोरेटली इसकी वजह से कवर अप हो जाएगा. एंड फर्दर इसके साथ साथ मेरे सारे लेक्चर पीपीटी ड्रिवन होते हैं एंड मैं आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करवाऊंगा. जब अपने लेक्चर चलते हैं तो लेक्चर के बीच में ही बेसिकली यू कैन से दैट कि एक बंदा बैठा रहता है जिसके पास अपने कोर्स का एक्सेस है, वो अपने नोट्स बनाता है मेरे हिसाब से, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. पीपीटी एंड हैंड रिटन नोट्स का आपको फायदा कहाँ पे होगा, अगर आपको सैटरडे संडे को रिवीजन लगानी है, वंस इन अ मंथ रिवीजन लगानी है, तो वो रिवीजन के लिए आपको अलग कंटेंट करने की जरूरत नहीं है. पीपीटी एंड आफ्टर फिर हैंड रिटन नोट इज नथिंग बट द कर्टील वर्जन
ऑफ माई क्रक्स मटेरियल। तो मैंने आपको जो है 160 to 180 लेक्चर्स में काफी इलेबोरेट लेवल पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल माइंडसेट देना है, एंड देयर आफ्टर आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द सपोर्ट ऑफ द कंटेंट। बट इससे तो आपका नॉलेज एंड पर्सनैलिटी एनहेंस होगा, गेन होगा। यही नॉलेज आपको पेपर पे भी तो उतारना आना चाहिए ना। एंड पेपर पे कैसे उतारोगे? ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पस देयर इज सेकेंडरी स्किल सेट। सेकेंडरी स्किल सेट की अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली इसके लिए जो है मैं सबसे पहले जो 8 डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशंस आपके लूंगा। ये 8 डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर सेशन में रफली 3 to 5 आंसर्स आई गिव यू। आप आंसर लिखोगे, मैंने भी इसके आंसर लिख के रखे। सिंस आई हैव स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा कि योर आंसर एंड आफ्टर माय आंसर इसमें जो है कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड अगर आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो हाउ मच डिलीजेंस, मेहनत आपको लेनी पड़ेगी। एंड देयर आफ्टर यही पर्टिकुलर सेशन में आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस इलैबोरेटली अबाउट द थंब रूल्स ऑफ द आंसर राइटिंग। what are the things that you need to focus upon, what are the things that you need to avoid। जैसे कुछ कॉमन मिसनोमर है कि हर एक क्वेश्चन में हिस्टोरियोग्राफी डालनी है या नहीं डालनी है, हर एक क्वेश्चन में मैपिंग करना है या नहीं करना है, फिर मैप डालना है नहीं डालना है। तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके कुछ थंब रूल्स है, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है मैं आपको एक डेडिकेटेड मेल आईडी भी दूंगा। ये डेडिकेटेड मेल आईडी के ऊपर अगर आपको डेली आंसर राइटिंग, मंथली आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग करनी है तो यू कैन डू इट एट योर लेवल। एंड वंस यू हैव डन दैट पर्टिकुलर आंसर राइटिंग तो वो आंसर जो आप मुझे भेजो, आई एम गोइंग टू गेट देम इवेल्युएटेड एंड गिव इट बैक टू यू। आंसर मैं नहीं इवेल्युएट करूंगा, मेरे अंडर इंटरव्यू रिटर्न कैंडिडेट की एक टीम है, वो इवेल्युएट करेंगे, बट ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द डिटेल डिस्कशंस ऑफ 2013 से लेके 2024 के सारे ही पीवाई। 2013 में यूपीएससी में जो है पैटर्न चेंज हुआ था। 2013 में यूपीएससी में पैटर्न चेंज हुआ था इन द सेंस दैट कि यूपीएससी ने 2012 तक जो है अलग पैटर्न के हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर डाल के रखे हुए थे। तब हिस्ट्री ऑप्शनल 600 मार्क का हुआ करता था, पैटर्न जो है 60 एंड 30 मार्क का हुआ करता था। अब ऑप्शनल 500 मार्क का है, पैटर्न 20, 15 एंड 10 मार्कर है। तो 2013 के पहले की पीवाईक्यू की कुछ वैलिडिटी बची नहीं है। दैट्स व्हाई 2013 से लेके 24 तक जितने भी मेंस हुए हैं उनके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एंड आफ्टर इनके मॉडल आंसर जो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली पर्टिकुलर कोर्स में जो है टेस्ट सीरीज इज आल्सो देयर। टेस्ट सीरीज जो है रफली 12 टेस्ट का रहेगा एंड ये 12 टेस्ट में 8 सेक्शनल एंड आफ्टर 4 फुल लेंथ टेस्ट वुड बी देयर। तो आपका जो आंसर राइटिंग है, वॉट एवर नॉलेज दैट यू आर गेनिंग ओवर हियर, या पेपर पे उतारोगे, तो पेपर पे किस तरीके से उतारना है, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस इलैबोरेटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंटेंट एनहेंसमेंट जो दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू डेडिकेटेड मैपिंग सेशन, फ्रीक्वेंट पीवाईक्यू डिस्कशन एंड आफ्टर फिर एनसीईआरटी के फाउंडेशन क्लासेस, इसका रिकॉर्डेड एक्सेस जो दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन आवर कोर्स। काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ। इसमें आपको जो है लेक्चर, कंटेंट एंड आफ्टर टेस्ट सीरीज, 3 बेसिक हॉलमार्क के सभी मिलेंगे। एंड आफ्टर मेंटरशिप का एक्सेस भी इसमें अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली दिस आर द कोर्स डिलीवरेबल एंड अल्टीमेटली व्हाई यू शॉल बी जॉइनिंग द कोर्स। तो सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट तो बेसिकली ऑलमोस्ट आई एम टीचिंग हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर 9 years। अगर मैं मेरे हिसाब से अगर बताऊँ तो आई विल बी द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू to go for the history optional because I have myself given 2 interviews in the civil services examination 2017-18 में, and I have also been one of the topper in the history optional। वो unfortunately मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, बट मैंने मार्कशीट भी दे के रखा है। 2018 का मार्कशीट मैंने दे के रखा है, 2017 में भी आई हैव स्कोर 297 मार्क्स। बट 2018 का इसीलिए बिकॉज 2018 के बाद यूपीएससी ने सभी मार्कशीट इंक्लूडिंग इंटर रिटर्न कैंडिडेट जो है, मेरा नहीं हो पाया अल्टीमेटली, बट इंक्लूडिंग इंटर रिटर्न कैंडिडेट के मार्क जो है वो आउट इन द ओपन डिस्क्लोज करके रखे। सो इफ यू वांट टू हैव रोल नंबर है, नाम है, एंड देयर आफ्टर फिर 303 मार्क्स व्हिच आई वाज टेलिंग यू कि दिस पर्टिकुलर स्कोर वाज देयर ऑन माय। तो सबसे पहले जब आई हैव माई सेल्फ हैव आइडिया कि एग्जैक्टली 300 प्लस मार्क जो हिस्ट्री ऑप्शनल में लाने कैसे। आई हैव 8+ years एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, वी कैन से दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से दैट कि मल्टीपल इंटरव्यू मैंने पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आफ्टर सीएपीएफ में जो दे के रखे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो अफोर्डेबिलिटी इज ऑलवेज देयर।